So hello guys and welcome to Unacademy. I'm Shubdeep Datta and today we'll start with stereoisomerism. Okay. So guys, welcome to Target Top 100 Ranks MST CET and I'm Shubdeep Datta and I will be taking your chemistry classes, right? Okay. I'm an alumni of National Institute of Technology Durgapur and I have some 5 plus years of teaching experience, okay? I teach chemistry and I specialize in teaching IIT, JEE and NEET along with various state entrance examination such as the Maharashtra Common Entrance Test, right? So guys, let's crack Maharashtra CET with India's largest e-learning platform, that is the Unacademy, only for you. And if you get the plus subscription, you can get access to unlimited live and recorded courses from India's best educators. So please get the plus subscription today, guys. And also download the Unacademy Learning app from the Google Play Store and also connect with us on Telegram app by downloading it from the Google Play Store, and then you have to type the link in the URL. This link, guys, you have to type it https then whatever, then crack Maharashtra CET exam. A group will appear and you have to join that group so that we can both be connected and we can like share the video descriptions every day with each other. So guys, please hurry up, get the plus subscription, and because the prices may go up by 15% next month, please buy now. And these are the subscription plans that you have to look forward to. And for 1 month you have to pay 2700 rupees only, and for 3 months it is 6750 rupees. For 24 months it is 21,600 rupees only, which means that you have to only pay 900 rupees per month, which is I think very less. And further you can further you can see that if you use this code you can get a 10% extra discount. If you use this code you can get a 10% extra discount, which means that if you were paying 21,600, now you have to pay 2160 rupees less, right? Which makes it very economic, and your financial conditions won't come in your way of education. So guys, please do it today right now, and let's switch to open board. One second. Okay. Today we will start off with stereoisomerism. Okay, and it arises due to difference in the spatial arrangement, right? It arises due to difference in the spatial arrangement in a pair of stereoisomer. In a pair of stereoisomer,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम। कभी भी अगर हम लोग स्पेशियल अरेंजमेंट में कोई चेंज देखते हैं वहाँ पे स्टीरियो आइसोमर में, जहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, किसी स्टीरियो आइसोमर में मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम रहेगा, जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो भी आपका सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला आपका सेम रहेगा। और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है तो आईयूपैक नेम भी क्या होगा, सेम होगा। केवल और केवल उसका स्टीरियो केमिकल फार्मूला जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टीरियो केमिकल फार्मूला वैसे क्या होता है, स्टीरियो केमिकल फार्मूला होता है जो ओरिएंटेशन जस्ट क्या विच रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स, जो कि एक ग्रुप जो कि एक ऐसा फार्मूला जो कि एक ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन को दे, है ना, जो कि ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, उसको बोलते हैं स्टीरियो केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 हुआ, है ना, तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, एक CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, तो इसको बोलेंगे ब्यूट टू इन। नाम देख लेते हैं। टू आफ्टर फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट इज 1 2 3 and 4, तो क्योंकि 2 नंबर पे एक डबल बॉन्ड है इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन। नाउ अगर हम लोग सही से गौर करें तो इस ब्यूट टू इन को हम इस तरह से देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड, क्योंकि एक प्लेनर स्ट्रक्चर है ना, ये तो एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के ये है आपका INA इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। इंटर न्यूक्लियर के एक्सेस के दोनों एक ही तरफ दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं। अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के एक ही तरफ दोनों मिथाइल ग्रुप होंगे तो इसको बोलेंगे सिस। देखो नाम इसका सेम है, 1 2 3 and 4, ये एकदम पहले जैसे ही बनाया, तो इसका नाम है ब्यूट टू इन। आईयूपैक के हिसाब से इसका नाम ब्यूट टू इन है। और एक और बन सकता है कि अगर हमने मान लो ये INA बनाया, डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है ना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, हो सकता है कि एक CH3 तुमने INA के एक तरफ बनाया, दूसरा CH3 तुमने INA की दूसरी तरफ बनाया, तो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे। तो सोचो यहाँ पर भी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 2 3 and 4, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम भी क्या होगा, ब्यूट टू इन। मतलब दोनों का नाम सेम है, बट ऑल्दो इसमें एक विजिबल एक चेंज ज़रूर है। मतलब ये इससे थोड़ा अलग तो ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे INA के दोनों तरफ एक ही तरफ दोनों मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे INA की एक तरफ एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ दूसरा मिथाइल ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ पे इसके नाम तो सेम आ जाएंगे, इस वजह से हमने क्या किया कि इसके आगे सिस लगा दिया। जब INA के एक ही तरफ दोनों मिथाइल ग्रुप हो, और जहाँ पे INA के एक ही तरफ एक मिथाइल ग्रुप और दूसरी तरफ दूसरा होता, वहाँ पर हमने इसको ट्रांस बोला। तो सिस ब्यूट टू इन और ट्रांस ब्यूट टू इन दो अलग अलग चीज़ें बनती हैं, और दोनों अलग अलग कंपाउंड्स भी हैं, बट आइसोमेरिज्म में इन दोनों का नाम जो होगा वो सेम होगा। इसीलिए डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक सिस बोला तो हमने क्या बोला, एक ट्रांस। ठीक है, ओके।
ठीक है कि नहीं? चलो, देखो स्टीरियो आइसोमर को हम देखेंगे दो तरीके से। एक है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, है ना, दूसरा है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है इनैंशियोमर, एक है इनैंशियोमर और दूसरा है डायस्टीरियोमर। ठीक है, इनैंशियोमर जो होते हैं वो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, मिरर इमेजेस, है ना। इनैंशियोमर जो होते हैं वो मिरर इमेजेस होते हैं, जबकि डायस्टीरियोमर क्या होते हैं? नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, नॉन मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। कन्फर्मेशनल में हम लोग देखें तो कन्फर्मेशंस एक्चुअली आर आइडेंटिकल, मतलब अगर मान लो ब्यूटेन है पहला कन्फर्मेशन, तो ब्यूटेन का ही एक दूसरा कन्फर्मेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ब्यूटेन के दो फॉर्म्स अगर आते हैं तो एक फॉर्म को हम लोग ब्यूटेन बोलेंगे तो दूसरे फॉर्म को भी हम लोग क्या ही बोलेंगे? ब्यूटेन। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि मान लो अभी मैं बैठा हूँ तो मेरे दोनों हाथ नीचे हैं, लेकिन मैं फिर भी शुभदीप हूँ, मेरा नाम शुभदीप ही रहेगा, मेरी पर्सनैलिटी वही रहेगी। और मैंने दूसरे मोड़ पे हाथ ऊपर कर लिए, तो मैंने हाथ ऊपर किए तो मैं शुभदीप से चेंज होकर रवि प्रसाद शंकर नहीं हो गया, है ना, मैं अभी भी शुभदीप रहा। तो ब्यूटेन उसी तरीके से बॉन्ड के अबाउट रोटेट करता है, तो अलग अलग एंगल पर ब्यूटेन के अलग अलग स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। तो मतलब सारे के सारे वो हैं ब्यूटेन ही, बट वहाँ पे कन्फर्मेशन एक आइसोमर हम उसको बोलते हैं, मतलब वो सबके सब आइडेंटिकल हैं, है ना। तो देखते हैं स्टीरियो आइसोमर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे हम प्रोसीड करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के साथ में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम लोग देखते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम क्या होता है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम्स क्या होता है? मान लीजिए कि दो कार्बन कुछ आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड क्या है? बॉन्ड अलोंग INA। INA मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो रोटेशन इज पॉसिबल ड्यू टू हेड ऑन कोलिशन, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड है, फिर एक और कार्बन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड जो भी होगा, यहाँ पर जो भी आपका बॉन्ड होगा, यहाँ देखेंगे तो ये रोटेशन इधर से देखेंगे, इधर से, तो रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि एक बॉन्ड एक एक्सेल की तरह होता है, एक बॉन्ड एक एक्सेल की तरह होता है। ये बॉन्ड धीरे धीरे घूमता जाएगा और यहाँ पे रोटेशन इसका पॉसिबल होता जाएगा, ठीक है ना। बट अगर मान लेते हैं दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आता है, तो डबल बॉन्ड क्या होता है? अबव एंड बिलो द एक्सिस। मतलब अगर ये प्लेन है, मान लें ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है, ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया, जो मतलब ये एक बॉन्ड होगा ना सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। बाकी बॉन्ड कितने बचे इसके? दो बॉन्ड यहाँ बचे, दो बॉन्ड यहाँ,
तो इसने 2 बॉन्ड यहाँ बना लिए, 2 बॉन्ड यहाँ बना लिए इस तरह से। लेकिन जो पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, मैंने बोला ना अबव एंड बिलो। और आधा पाई बॉन्ड बनेगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के नीचे। इसका मतलब अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ना चाहें, घुमाना चाहें, इसको फिक्स रखते हुए, इसको फिक्स रखेंगे, है ना, जैसे यहाँ पे हम चाहते तो इस कार्बन को फिक्स रखते और इस कार्बन को घुमाते तो ये बॉन्ड आराम से घूम जाता क्योंकि आईएनए के अलॉन्ग था। बट यहाँ पे ये बॉन्ड तो घूम सकता है, बट ये जो दूसरा बॉन्ड यहाँ पे आ गया ना, जो कि अबव एंड बिलो द एक्सिस है, इसको अगर हम घुमाते हैं, इसको फिक्स रखते हुए, है ना, इसको फिक्स रखते हुए इसको अगर हम घुमाते हैं तो यहाँ पे पता है क्या होगा? यहाँ पे पहले तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ये सिस्टम घूम पाएगा। तो बेसिकली जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड, इसको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है वो रोटेशन के ऊपर है। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड जहाँ पर हो उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम। तो इसीलिए जहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर ये नॉन रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब ये बॉन्ड घूम सकता है, नॉन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम, ठीक है। जबकि अगर मान लो कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये बॉन्ड ऐसे घूम नहीं सकता, तो इसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम, RRS। कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया कार्बन कार्बन के बीच में तो भी इसको क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम। और कहीं पे अगर मान लो कार्बन 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 है, कार्बन 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 है, इस तरह से नहीं, चलो मुझे क्या करना है? इस कार्बन को फिक्स रख के, है ना, ये जो है ना इसको घुमा देना है ऐसे करके, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बीच में अगर रिंग आ जाए ना, रिंग, तो एक कार्बन को पॉसिबल रख के दूसरी लाइन को हम ट्विस्ट नहीं कर सकते, यहाँ से भी ट्विस्ट नहीं कर सकते। इसको घुमाने के लिए इस पूरे के पूरे इसको घूमना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली एक डबल बॉन्ड जो होता है ना वो एक रिंग का सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो अगर एक डबल बॉन्ड को हम नहीं घुमा सकते हैं तो एक कार्बन को फिक्स रखते हुए बाकी का रिंग भी नहीं घूम सकता, ठीक है ना। तो ये जो रिंग है ना ये भी क्या है? एक RRS है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम है। जैसे कि अगर मैं और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम्स की बात करूं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम था ही। एक और देख लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, है ना, एक रिंग, है ना, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये सारे के सारे क्या हैं? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम है ना। जो GI होता है ना, GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस किसका? ऑफ अरेंजमेंट of groups with respect to RRS, restricted rotational system। एग्जाम्पल, अगर मान ले हमारे पास A है, C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे A ले लेते हैं, यहाँ पे B है और यहाँ पर B है। इसको अगर हम 1 नाम देते तो ये बेटा सिस होगा, है ना। क्यों सिस होगा? क्योंकि ये INA जो है, INA की एक तरफ दोनों सिमिलर ग्रुप्स हैं। जब INA के एक तरफ दोनों सिमिलर ग्रुप्स हो तो उसको क्या बोलते हैं? सिस। सिमिलरली इसका एक ट्रांस भी है। ट्रांस कौन सा है? कि जो डबल बॉन्ड है उसके एक तरफ अगर A है तो डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ भी एक बार A आएगा तो B को कहाँ जगह मिलेगी? यहाँ पर। तो INA के एक तरफ एक AB है, INA के दूसरी तरफ भी एक AB है,
है ना। तो ऐसा अगर हम बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो अगर कहीं पे सिस होगा तो कहीं ना कहीं ट्रांस जरूर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हुआ क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है ना, क्या इसको इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको बस घुमा के? नहीं, क्योंकि अगर हम इसको घुमाते हैं तो ये इसको फिक्स कर देते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। इसको फिक्स रखने के बाद इस कार्बन को अगर हम ये बॉन्ड घुमाते हैं तो ए जो है वो नीचे आ जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा, बट उसके पहले इस बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड शुड बी ब्रोकन, है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम होता है, तो बिना तोड़े बॉन्ड को ये घुमा नहीं सकते। अगर बाई चांस घुमा देते तो बी ऊपर आ जाता, ए ऊपर आ जाता, सिस ट्रांस में चेंज हो जाता, है ना। बट क्योंकि ये अपने आप ही टूट नहीं सकता विदाउट बॉन्ड को ब्रेक किए हुए, इसका मतलब ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग कंपाउंड है। दैट मीन्स बोथ आर, मतलब कौन सा, सिस एंड ट्रांस आर डिफरेंट कॉम्पाउंड, ठीक है ना। सिस और ट्रांस दोनों कैसे हैं, अलग कंपाउंड है, डिफरेंट कंपाउंड है। ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम, तो देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम वहाँ पे लगाया जा सकता है जहाँ पे ग्रुप्स के ओरिएंटेशन में डिफरेंस आए, है ना, तभी उसका कोई मतलब है। तो ग्रुप्स दैट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसे कि सिस और ट्रांस, वो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, ए सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड है और इस तरफ दो ग्रुप्स हैं, एक है ए बी, है ना, और एक क्या है आपका ए बी, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर सिस और ट्रांस शो हो सकते हैं, सिस और ट्रांस यहाँ पर शो हो सकते हैं। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है कि अगर यहाँ पर ए बी है ना, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है और इस तरफ ए डी है, तो यहाँ पे दो सेट थे सिमिलर ग्रुप्स के, एक था ए दूसरा था बी, लेकिन यहाँ देखेंगे केवल एक ही सेट है सिमिलर ग्रुप का, बाकी दूसरा कौन सा है, डी है, ये बी नहीं है, ये डी है ना। तो यहाँ पर भी सिस एंड ट्रांस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से होंगे, जैसे कि सी के एक तरफ ए दूसरी तरफ बी, डबल बॉन्ड सी की एक तरफ ए दूसरी तरफ डी। तो सिमिलर ग्रुप जिस तरफ हैं उसको क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। तो दूसरा क्या आ जाएगा, ट्रांस। ट्रांस में ए अगर इधर है तो डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ ए होगा, यहाँ पे डी है तो यहाँ पर बी होगा, तो इसको क्या बोलेंगे कि ट्रांस बोलेंगे। जब सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के रिस्पेक्ट में, तब उसको क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, जहां पर ए बी सी डबल बॉन्ड सी तो है, लेकिन इसके बाद में ई डी आ जाता है, मतलब यहाँ पर एक भी सिमिलर ग्रुप्स नहीं है। तो यहाँ पे जी आई एग्जिस्ट तो करता है, जी आई एग्जिस्ट तो करता है उसको, लेकिन सिस ट्रांस नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। वहाँ पर उसको ई या जेड बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड सी है तो एक तरफ ए है दूसरी तरफ बी है, एक तरफ ई है दूसरी तरफ डी है, एक भी आपका सिमिलर क्वांटिटीज़ दोनों तरफ नहीं है। ये है आपका INA और ये है आपका डबल बॉन्ड जिसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम। इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम के एक तरफ ए है एक तरफ ई है। एक ऐसा भी बनाया जा सकता है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशनल सिस्टम के एक तरफ ए है और उसी तरफ डी हो, और दूसरी तरफ जो होगा वहाँ पर बी है और ई है, ऐसा भी बन सकता है। इनमें से एक ई बोला जाएगा एक जेड बोला जाएगा। अब किसको ई बोलना है किसको जेड बोलना है वो हम बाद में सीखेंगे,
लेकिन यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो होंगे, मतलब difference in the orientation of groups with respect to restricted rotational system is called geometrical isomerism। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है सबको? अच्छा बताओ, यहाँ के दो बना दो तुमने, जैसे इधर के बना दिए, इधर के बना दिए, इधर के क्या बनेंगे? इधर के कुछ इस तरह से बनेंगे, सी डबल बॉन्ड सी, ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और दूसरा क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पर बी है। तो ये है 1 और ये है 2, ठीक है ना। तो एक बनेगा सिस, ये बनेगा सिस, और ये क्या बनेगा, ट्रांस, राइट। इस तरह से हम लोग देखेंगे तो जनरली आज के कंक्लूजन पर आते हैं। आज का कंक्लूजन ये है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ अरेंजमेंट of groups with respect to restricted rotational system, keeping the structural formula सेम, है ना। फिर से मैं वो एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो तुमने ब्यूटूइन लिया, तो ब्यूटूइन का मतलब हुआ 4 कार्बन है, ठीक है ना। 4 कार्बन में सेकेंड पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। ये होता है ब्यूटूइन। तो मतलब यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एक और H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एक और H है। इसको अगर हम बनाने जाएंगे तो इसके 2 प्रकार से इसको हम बना सकते हैं। पहला, ये जो C डबल बॉन्ड C है, ये तो एक प्लेनर स्ट्रक्चर होगा ना, बोलो, ये तो एक प्लेनर स्ट्रक्चर होगा ना। तो सारे जो सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड मतलब जो सिंगल बॉन्ड्स हैं, वो सारे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। तो ये डबल बॉन्ड बना दिया। सेम प्लेन मतलब 4 हाइड्रोजन तुम्हारे इस प्लेन के ऊपर, 2 कार्बन इस प्लेन के ऊपर। एक सेकेंड, एक गलती हो गई। ये जो डबल बॉन्ड है ना, सॉरी एक और गलती हो गई, बहुत सारी गलतियां हो गई। हाँ, ये समझ में आता है। तो सोचो, ये तुम्हारा पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। तो एक ही प्लेन पे अगर पूरा ये सिस्टम लाई कर रहा है, तो अब ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर पे CH3, दूसरे नंबर पे दूसरा कार्बन, तीसरे नंबर पे तीसरा कार्बन, चौथे नंबर पे फिर से CH3 आ जाए इधर के। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इस प्लेन में देखो कि अगर इस प्लेन को हम डिवाइड कर दें 2 हिस्सों में, तो प्लेन के एक तरफ दोनों तुम्हारे मिथाइल ग्रुप आ जा रहे हैं और प्लेन के दूसरी तरफ दोनों हाइड्रोजन आ जा रहे हैं, है ना। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग इसको फिर से बनाएं, है ना, इस प्लेन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, INA। तो कार्बन और कार्बन पहले बना लिया। अब इस कार्बन और कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड तो रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड तो रहेगा, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है, ये आपका प्लेन के ऊपर है और प्लेन के नीचे है, ठीक है ना। प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। अब देखो जरा, इस INA के एक तरफ हमने CH3 लगाया और इस INA की दूसरी तरफ भी CH3 लगा सकते हैं। तो बचे हुए जो 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ पे। अब भी देखो, 1 पे CH3, 2 पे दूसरा कार्बन, 3 पे दूसरा कार्बन, और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, और चौथे पे ये वाला मिथाइल ग्रुप। तो बेसिकली दोनों का स्ट्रक्चर सेम है ना। 1 2 3 4 यही स्ट्रक्चर है ऊपर के जैसा।
बट यहाँ पे इसका मतलब नाम भी सेम होगा, आयु पैक भी सेम होगा अगर स्ट्रक्चर सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, केवल और केवल ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप्स, दैट्स इट। तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जीआई बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर का बचा हुआ पार्ट। सो थैंक यू, आई होप यू विल बोथ स्टडी एंड हमसे जुड़े रहने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड यू आर वाचिंग क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल। प्लीज़ यूज दिस कोड SHUBHDEEP. It will help you gain 10% discount on the said amount. And if you hit the bell icon for notification, we will send you the notification so that you don't miss any of the classes. That's it guys, that's all from my side for today, and signing off, this is Shubdeep Datta.